So alcohols and the phenol are formed when a hydrogen atom in hydrocarbon or aliphatic or aromatic respectively is replaced by hydroxyl group. Means one of the hydrogen of the either aliphatic or aromatic hydrocarbons is replaced by OH group. Then you will get alcohol or phenol. Okay. So in case of alcohol, तो अल्कोहल का समय में क्या होगा, आपको एलिफेटिक होना पड़ेगा. ओके. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक आइस को आप क्या करो बोला, एक आइस को हटा दो और क्या डालो बोला, OH डाल दो. सपोज ROH. ठीक है. R इज नथिंग व्हाट, अल्काइल ग्रुप. R जो है अल्काइल ग्रुप है, तो ROH होने से क्या हो गया, अभी अल्कोहल बन जाएगा. ओके. तो आपका बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दो, OH डाल दो, तो क्या हो गया, फेनॉल हो गया. क्लियर. ठीक है. तो देन मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने से आपको फेनॉल मिलेगा और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होने से अल्कोहल मिलेगा. ओके. दिस इज व्हाट अल्कोहल एंड द फेनॉल. नाउ वी विल गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड द फेनॉल. इन अल्कोहल OR group, here R is nothing, alkyl group. Okay. OR group is attached to sp3 hybridized carbon atom. Okay. And the alcohols are usually classified as primary, secondary and the tertiary alcohols. As we have already discussed that if one R is there, then we call as a primary. If 2R is there, then we call as a secondary. If 3R is there, then we call as a tertiary. Clear? So the alpha carbon is surrounded by only one R, then it is called as a primary. If alpha carbon is surrounded by 2R, then it is called as secondary. If alpha carbon is surrounded by 3R, then it is called as a tertiary. Clear? So this alcohol may be classified into three types. First one is monohydric alcohol. Mono means one. So only one OH group is there, then it is called as a monohydric alcohol. Okay, having this one OR group. And whereas if 2R group is there, then 2OR group you can say. Okay, 2OR group is there, then it is called as a dihydric alcohol. If more than 2OR group is there, then it is called as a polyhydric alcohol. Clear? So we can classify alcohol into three types. First one, monohydric alcohol containing one OR group, and then 2, then we call as a dihydric alcohol. If 3, then it is called as a polyhydric alcohol. Why? In phenol, OR group is attached to आपका बेंजीनिंग होने से क्या है बोला, sp2 hybridization. So in sp2 hybridized carbon atom, and this may be monohydric or dihydric. Okay. In phenol also it may be monohydric or it may be what, dihydric. So in case of phenol we may have two. One is what, monohydric, another one is what, dihydric. Okay. Dihydric phenol further may be classified as ortho, meta and the para derivatives. Okay. So this dihydric phenol we can classify either what, ortho, if one OH group is there in the ortho group. Okay. If one OH is there in the meta group, then it is called as a meta derivatives. If one more OH group is there in the para position, then it is called as a para derivatives. Now let us see. This is simple phenol. Okay. And this ortho phenol that we call as a common name catechol. Okay. Catechol means ortho phenol है. Okay. And then आपका मेटा फेनॉल को क्या बोलता है, रेसोरसिनोल. ओके. रेसोरसिनोल मीन्स पारा, दिस मेटा फेनॉल. ओके. एंड देन पारा होने से क्विनोल बोलता है. क्विनोल को दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्सी क्विनोल भी बोलता है. ओके. हाइड्रोक्सी क्विनोल मीन्स पारा हाइड्रोक्सी फेनॉल बोलेगा उसका नाम. ओके. क्लियर.
मेटा हाइड्रोक्सीफेनॉल बोलेगा उसको, ओके। देन उसको ऑर्थो हाइड्रोक्सीफेनॉल, ऑर्थो कैटेकोल को, ठीक है। नाउ लेट अस सी अबाउट द एलाइलिक अल्कोहल। आपको एलाइलिक बेंजाइलिक बोल के हम लोग ऑलरेडी सीखा है उधर में। सो एलाइलिक मीन्स क्या बोला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होना ही पड़ेगा बोला था ना। सो इन एलाइलिक अल्कोहल OH group is attached to sp3 hybridized carbon but next to what, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके। एलाइलिक बोलेगा, बोलने से OH ग्रुप जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन में अटैच होगा, देन इट इज कॉल्ड एज एलाइलिक अल्कोहल, क्लियर। सो इन केस ऑफ एलाइलिक अल्कोहल द OH group is attached to sp3 hybridized carbon but next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो इसीलिए आपको अलग याद रखना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये अटैच करना है बोल के। दिस इज एलाइलिक, ओके। CH2CH, तो अभी नेक्स्ट वाला CH2 में अटैच कर लिया ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला में अटैच किया है, सो इट इज ऑफ क्या बोला, एलाइलिक अल्कोहल है, ओके। व्हेयरएज इन केस ऑफ बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में भी बेंजाइलिक अल्कोहल, सो बेंजीन रिंग हो गया, इसलिए बेंजाइलिक हो गया C6H5, तो नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग यदि साइड चेन होके CH2OH बोल के है ना, तो अगर बेंजीन रिंग का नेक्स्ट टू कार्बन अटैच टू बेंजीन रिंग उधर में साइड चेन होके अगर OH अटैच कर लिया तो उसको क्या बोलेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल बोल के बोलेगा, ओके। सो वी हैव टू टाइप्स, वन इज व्हाट, एलाइलिक अल्कोहल, अनदर वन इज व्हाट, benzylic alcohol. In both allylic and benzylic alcohol, the OH group is attached to sp3 carbon next to carbon carbon double bond. Okay, so this is what we have. Now structure of alcohol and phenol, we'll see structure of alcohol and the phenol. Now first let us see about the sp3 carbon atom, okay. The oxygen atom of the alcohol is sp3 hybridized and they have tetrahedral position of the hybrid atomic orbitals, okay. So here you have these tetrahedral structures. O is here in the middle, in this part of the tetrahedral, and then H is there. ROH means what, this is alcohol, okay. The value of L ROH means the angle of this ROH bond angle depends on R group, क्योंकि R group बड़ा होने से रिपल्सन ज्यादा होगा, clear. So that is why the value of means that angle of bond angle of this ROH depends on R group, okay. For the methyl alcohol, methyl means C equal to 1 है, तो मिथाइल अल्कोहल के समय में it is of 108.9, okay, degree due to the repulsion of lone pairs, clear. कौन सा लोन पेयर है ये, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, क्लियर। अल्काइल ग्रुप में तो लोन पेयर नहीं है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर का चलते हुए एंगल जो है कितना होगा बोला, 108.9 डिग्री होगा। whereas in phenol the OH group is attached to sp2 hybridized carbon and thus the CO bond acquire a partial double bond characters, okay. OH बॉन्ड जो है क्या होगा बोला, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। क्यों होगा, O का लोन पेयर जो है आपको रिंग में देगा, समझ में ना, इधर में लोन पेयर रहता था, 2 लोन पेयर रहता है, एक लोन पेयर यहाँ दे दिया, तो इसके चलते हुए क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। दस द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ फेनॉल इज ऑफ 109 डिग्री, क्लियर, समझ में ना। तो अभी हम लोग पूछ सकते हैं कैसा करके, इन केस ऑफ, you can write it the question, in case of methyl alcohol the bone angle of ROH, the bone angle of ROH is 108.9 degree, 8.9 degree, while in phenol is
109 degree. Give reason. Okay. Your answer, I have already told that in case of methyl alcohol, due to the lone pair of oxygen, the repulsion, due to the lone pair of oxygen repulsion, the bond angle is of 108.9. Whereas in phenol, OH is attached to sp2 hybridized carbon atom. Hybridized carbon atom. Which acquire partial double bond character. Which acquire partial double bond character. Thus, the bond angle is 109. Thus the Bond angle is 109. Okay. Okay. Now let us see about the nomenclature. Now, in case of nomenclature of alcohol, as we know that, हम लोग पता चला है, क्या पता चला, अल्कोहल जो है एक हाइड्रोजन निकाल के OH डालता है बोल के बोला है. दैट इज वाई अभी अल्केल का ये निकालो. अल्केल का फॉर्मूला क्या है? CnH2SN +2 है. +2 से एक निकाल दो, क्या आ गया? CnH2SN +1 आ गया है कि नहीं? तो अभी CnH2SN +1 से क्या डालो बोला? एक हाइड्रोजन के बदले OH डालो बोला. सो द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल इज CnH2SN +1 OH आ जाएगा. क्लियर? सो होमोलोगस सीरीज क्या है बोला अभी? CnH2SN +1. Okay, so this is the homologous series where in short you can say ROH. Okay, R means क्या बोला? CnH2SN +1. Okay, this is what about the alcohol. Now in case of nomenclature we have two types of nomenclature. Okay, first one is what you call as a common name, another one what you call as a IUPAC name. Okay, but IUPAC name is important and common name is just simply for understanding. Clear? So for the common name, monohydrate alcohols are called what? क्या बोला? Alkyl alcohols. Okay, क्यों? मतलब R जो क्या बोला? Alkyl है बोला था ना, तो alkyl alcohol बोल के बोलेगा. से alkyl alcohol में CH3OH क्या हो गया? मिथाइल, तो मिथाइल अल्कोहल बोल के, समझ में ना? ओके, तो C2H5 हो गया इथाइल अल्कोहल. ओके, C3H7 हो गया C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल. क्लियर? सो यू नीड टू से मिथाइल अल्कोहल इन शॉर्ट. ओके, और अल्काइल अल्कोहल. क्लियर? दिस इज द कॉमन नेम. नाउ अनदर सिस्टम ऑफ कॉमन नेम दैट इज व्हाट ही कॉल एज ए कार्बिनोल सिस्टम बोल के बोलते हैं. क्लियर? कार्बिनोल, CRBINOL, कार्बिनोल सिस्टम बोल के. इन दिस सिस्टम इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एज ए कार्बिनोल. तो इथाइल अल्कोहल को क्या बोलता बोला? कार्बिनोल बोलता है. वाइल द अदर अल्कोहल्स क्या बोलेगा हम लोग? अल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनोल बोल के बोलेगा. अल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनोल. इथाइल इथाइल. ओके, मिथाइल मिथाइल. ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते बोला? कार्बिनोल बोल के बोलेगा. ओके, देन मिथाइल अल्कोहल का कार्बिनोल बोल दिया, तो अभी इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये सबको हम लोग क्या बोलेगा बोला? अल्काइल कार्बिनोल्स बोल के. ओके, ठीक है. और एराइल होने से एराइल कार्बिनोल. दिस कार्बिनोल सिस्टम इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, ओनली द इम्पोर्टेंट इज व्हाट?
IUPAC name for the examination. Okay, clear? So alcohols are named as alkanols. In case of IUPAC, alcohol are named as alkanols. तो अल्कानोल बोल के हम लोग ये बोले जब मीन्स अल्केन का ANE था ना, E is removed, okay, then OL you put. Clear? तो अल्केन का ANE को से E निकालेगा, क्या डालेगा? OL डालेगा. This is the rules. Okay, so like this one we need to give it the name. So now let us see one examples here. Okay, to give the IUPAC name of monohydric alcohol, CH2CHOH, CH2CHOH, CH2CH3. Clear? Okay, अभी आपके पास में C कितना है? C कितना है? 4 है. तो C4 मीन्स क्या है? ब्यूटेन है, ठीक है ना? तो ब्यूटेन से E निकालो. देन OH कितना में बोला? OH जो है कार्बन नंबर 2 में है, तो 2 ओल. सो तुम्हारा नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ओल. ओके, सो लाइक दिस वन यू नीड टू गिव द नेम फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. ओके, क्लियर? समझ में ना? सपोज आपका CH3, CHOH, CH2, CH2, CH3, तो कितना आ गया? अभी C कितना है? CH3, CHOH, CH2, CH2, CH3. 5. C is 5. Okay? But in carbon number 2 OH is there, is ना? 5 means क्या है? पेंटीन है. तो पेंटीन से E निकालो. पेन. ओके, तो 2 ओल. और 3 में होने से पेन 3 ओल. 4 में होने से 4 में होगा क्या? 5 होने से पीछे से आएगा 2 ओल. क्लियर? So like this one. Okay, this is for monohydric alcohol. Now we'll go to the dihydric alcohol. The general formula of dihydric alcohol is of CH2 n times OH2. Okay, उसका general formula क्या बोला? CH2 n times OH2. That means OH जो है double times रहेगा बोल के बोला. Okay, and generally they are sweet in taste. Dihydric alcohol जो है क्या बोला? Sweet taste होते हैं. तो स्वीट मीन्स हम लोग ग्लूकोज से आता है ना, तो इसीलिए ग्लाइकोल बोलते हैं. जनरली डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर नेम एज ग्लाइकोल्स. ओके, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. ओके, दे आर क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा ग्लाइकोल्स. डेल्टा बोल के आएगा. डेल्टा W लास्ट में आ गया. अल्फा, बीटा, गामा धीरे धीरे करके आते रहेगा, लास्ट में W में खत्म होगा. ओके, सो लाइक दिस वन. तो इफ, तो अभी क्या है? अल्फा क्या है? बीटा क्या है? अब देखो. ओके, अल्फा ग्लाइकोल आर नेम बाय एडिंग द वर्ड ग्लाइकोल टू द नेम ऑफ द अल्केन फ्रॉम व्हिच दे आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलाइजेशन. ओके, तो डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड करो बोला है, तो क्या मिलेगा बोला? आपका अल्फा ग्लाइकोल मिलेगा बोल के बोला है. ओके, मीन्स अल्फा कार्बन में होना चाहिए. समझ में ना? अल्फा कार्बन मीन्स क्या बोला? जो फंक्शनल ग्रुप अटैच करता है उसको, उसका नेक्स्ट को ये बोलता है ना. तो नाउ लेट अस सी इट वन. सो योर दिस वन देखो, CH2OH. ओके, दैट मीन्स फर्स्ट वाला अल्फा योर कहाँ में है? CH2OH. इथाइलिन ग्लाइकोल है वो. ओके, कार्बन नंबर 2 मीन्स इथाइलिन हो गया. 2 OH कंटिन्यूसली हो गया, तो क्या हो गया? ग्लाइकोल. 2 OH होने से ग्लाइकोल बोला था ना. तो इधर में अल्फा क्यों बोल रहे हैं? फंक्शन को अटैच किया बोला, उसका नेक्स्ट वाला को हम लोग फंक्शन को अटैच किया बोला, जो उसको क्या बोलता है? अल्फा कार्बन बोलता है ना. नेक्स्ट को बीटा कार्बन बोलते हैं. दैट मीन्स वन इज इन अल्फा, अनदर वन इज इन बीटा, देन इट इज कॉल्ड एज अल्फा. क्लियर? तो अल्फा ग्लाइकोल मीन्स क्या है बोला? एक दैट मीन्स द OH ग्रुप विल बी प्रेजेंट इन द साइमल्टेनियस कार्बन्स. मीन्स ओके, क्लियर? 1 by 1 में होगा. सपोज CH3, CHOH, CH2OH. ओके, तो
अभी भी एक कार्बन नंबर 1 एंड 2 में है ना OH तो ऐसा कंटिन्यूस जो होने से हम लोग क्या बोलता बोला ग्लाइकोल बोलेगा बोला कि नहीं। अभी कितना कार्बन है 3 है, 3 मीन्स क्या है प्रोप है तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बोल के बोलेगा। ओके इथाइलिन से आया बोला तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अगर 4 हो गया तो OH जो है 1 2 में है तो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर? So like this one we need to give the common name. In case of beta and gamma glycols are named according to the polymethylene glycols. Polymethylene glycol. So अभी बीटा मीन्स आपका क्या होना चाहिए एक कार्बन छोड़ के दूसरा में। ओके 2 कार्बन छोड़ने से OH ग्रुप जो है 2 कार्बन एक में फर्स्ट में हो गया और इसके बाद 2 कार्बन छोड़ दो। ओके और इसके बाद नेक्स्ट आओ तो फर्स्ट वाला को हम लोग क्या बोलता है अल्फा बोलते हैं, नेक्स्ट को तो गामा में ये हो गया ना 1 इज अल्फा 1 इज इन गामा। ओके देन इट इज कॉल्ड एज ए गामा ग्लाइकोल। क्लियर? ठीक है बीटा मीन्स 1 इज इन एक ही छोड़ना है बीच में। ठीक है तो क्या बोलेगा बीटा ग्लाइकोल बोलेगा। ठीक है अगर नहीं छोड़ा कंटिन्यूस हो गया तो क्या बोलेगा अल्फा। क्लियर? Okay, so this is what are about the alpha, beta, and the gamma in case of dihydric alcohol common name. Okay, clear? But in case of IUPAC, IUPAC में क्या बोलेगा डाइओल बोलेगा। ओके क्लियर? डाई मीन्स 2, ओल मीन्स OH group. Clear? Okay, so in case of IUPAC, dihydric alcohols are named as diols. Clear? तो अभी आपका diol and their common names is alkane diols बोल के बोलेगा common name. Okay. Now let us see one example of dihydric alcohols. Okay. CH2OH, CH2 देन CH2OH। क्लियर? बीच में एक CH2 छोड़ दिया। क्लियर? CH2OH देन CH2 देन CH2OH। ओके तो कितना कार्बन है 3 है तो अभी कहाँ काम है कार्बन नंबर 1 में एक कार्बन नंबर 3 में कि नहीं। सो प्रोपेन 1,3 diols। क्लियर? ओके लाइक दिस वन वी नीड टू गिव द नेम ऑफ द dihydric alcohols। Clear? So now we'll go to the trihydric alcohol. Tri means more than 2. Okay? 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है तो तब हम लोग उसको क्या बोलेगा बोला trihydric alcohols बोल के बोलेगा। Okay? For common name trihydric alcohol does not have any specific rules. Okay? common name के लिए कुछ भी रूल नहीं। Clear? But for IUPAC name this ट्रायोल्स बोल के बोलेगा। क्या बोलेगा ट्रायोल्स। 3 होने से 4 होने से टेट्राओल्स। क्लियर? लिखने का क्या जरूरी है ट्राई मीन्स 3। ओके ट्रायोल्स बोल के डालेगा। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल CH2OH CH2OH CH2OH। ओके तो 3 OH ग्रुप हो गया। क्लियर? देन में 3 हाइड्रोजन को 3 OH ग्रुप ने रिप्लेस कर लिया कंटिन्यूसली। ओके देन अभी क्या गया हम लोग इसको 3 मीन्स क्या है प्रोप है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल्स। क्लियर? ओके दिस इज व्हाट अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। ओके समझ में ना। नाउ लेट अस सी इन दिस पिक्चर आल्सो। सो नाउ वी हैव 1 2 3। So 1 OH is in the first, 2 OH is second OH is in the carbon number 2, and 3 OH is third OH is in the carbon number 3. So 3 carbon mentioned. So propane 1 2 3 triols. Okay. So in case of here also 1 benzene ring with OH what we call phenol. Is it not? So in carbon number 2 we have methyl. So 2 methyl phenol. Okay. Now we have this is one of cyclic structures. So how many rings are there? 5 carbons. 5 means pentane, is it not? So cyclic ring is there, so cyclopentane is there.
in cyclopentane, what we have here? In carbon number 2 and in carbon number 4, we have 2 methyl groups. So 2,4-dimethyl cyclopent. Okay. Then pentane is there, is not? E is cancelled. In carbon number 1, OL is there. Clear? Clear? OL. OS means OL. Then you get one out. 2,4-dimethyl cyclopentanol. Clear? So like this, we will give the name. समझ में आना अबे? तो कैसा नाम देगा बोल के. Now, before going to this preparation, let us see about the isomerism in alcohol. Okay? Isomerism in alcohol. तो अल्कोहल का हम लोग अलग अलग आइसोमर बना सकता है. आइसोमर कैसा बनाएगा तुम लोग ऑलरेडी क्लास 9-10 में सिखा गया है. तो क्लास 10 में क्या रहता है, अगर कार्बन चेन जो है डिफरेंस हो गया, अगर कार्बन चेन डिफरेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर. ठीक है. सपोज हम लोग ये ले लो CH3 CH2 CH2 CH2OH. ओके. CH3 CH2 CH2 CH2OH. क्लियर. तो अभी कितना कार्बन है, अभी 4 है. 4 हो गया. 1 on carbon number 1 OL is there. Okay. So that means that बनाओ ब्यूटेन 1-OL है ये. ओके. तो अभी इसको हम लोग कार्बन नंबर चेन का डिफरेंस हो सकता है. तो कैसा करके CH3 CH3 CH2OH. ओके. दैट मीन्स कार्बन नंबर 2 में एक CH3 डाल दिया तो मेन चेन में कितना बचा, 3 बचा. ओके. मेन चेन में कार्बन नंबर 3 बचा है. तो आपका एक तो सब्स्टिट्यूट होके चला गया. हम क्या बोला सिंबल CH3 CH ऊपर में CH3 नेक्स्ट में CH2OH बोल के बोला है कि नहीं. तो दैट मीन्स आपका नाम क्या हो गया, 2-methyl propane 1-OL है. ओके. क्लियर. सो हियर योर कार्बन चेन इज डिफरेंट, इज ना. सो इट इज कॉल्ड एज ए चेन आइसोमर्स. क्लियर. सो कार्बन नंबर में डिफरेंस होने से उसका नाम क्या दिया, चेन आइसोमर्स बोल के बोलेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ द OH जो है डिफरेंस करा दो, देन इट इज कॉल्ड एज ए पोजिशन आइसोमर बोल के बोलेगा. ओके. सो लेट अस सी वन एग्जांपल. CH3 CH2 CH2OH 3 कार्बन है तो देन क्या नाम दिया, प्रोपेन 1-OL आ गया. ओके. तो अभी उसको CH3 CHOH CH3 डालो. पहला कार्बन नंबर 1 में OH था, अभी कार्बन नंबर 2 में OH आ गया. तो ये भी सेम है, प्रोपेन 2-OL हो गया. ओके. तो दिस टू आर हैविंग द पोजिशन ऑफ द OH डिफरेंट, सो इट इज कॉल्ड एज ए पोजिशन आइसोमर्स. ओके. एंड अनदर वन इज फंक्शनल आइसोमर्स. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस करा दो बोल के बोले. सेम फॉर्मूला होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होगा, देन इट इज कॉल्ड एज ए फंक्शनल आइसोमर्स बोल के. ओके. सो अभी एग्जांपल देखो CH3 CH2OH इथानोल को. ओके. तो आपका कितना पास C है, 2 C है. क्लियर. हाइड्रोजन कितना है, 6 है, एक ऑक्सीजन है कि नहीं. तो उसको हम लोग CH3O CH3 बोल के लिख सकते हैं कि नहीं. CH3O CH. पहला में क्या था, OH था, मीन्स दैट और अल्कोहल था. ओके. अभी क्या आ गया आपका मिथोक्सी मीथेन, मीन्स दैट वो ना O का लिंकेज आ गया, इस तरह आ गया. ओके. क्लियर. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस. Here OH is there. OH means CH3 CH2OH. That is what? Alcohol. And here one O is there. ROR. समझ में ना. तो अभी फंक्शनल आइसोमर्स हो गया ये. Now let us see about the preparation of alcohol. First one is from alkanes. That means from hydrocarbon you can say. Okay. Clear. तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग ये करना है. Now let us see. Number 1, that is what? By acid catalyzed hydration in accordance with Markovnikov rule. Okay? Markovnikov rule को यूज करके आपका एसिड ने कैटलाइज करो बोल के बोला. काम है हाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. ओके. वाटर ऐड करो बोला है, काम है अल्किन में.
अब उसमें क्या होगा बोला, कैटलाइज होगा बोल के बोला, ओके। देन यू विल गेट वन नाउ अल्कोहल बोल के, समझ में ना। नाउ लेट अस सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अल्किन, इथिन। सपोज इधर में आइस हो गया तो इथिन आ गया, ओके। इथिन में हाइड्रेशन कर लिया, मीन एडिशन ऑफ वाटर, क्लियर। इन प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ एसिड, आइस प्लस मीन्स एसिड है, ओके। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्लियर। डबल बॉन्ड टूट गया तो वाटर को भी टूटेगा, वाटर टूटने से क्या आता है, आइस एंड द ओएस आता है, ठीक है नहीं। तो अभी क्या बोला, दो जो हाइड्रोजन कम है उसमें ओएस जाएगा बोल के बोला कि नहीं, क्लियर, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो अभी जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम मीन्स ओएस जो है विल गोज टू द दोज कार्बन हैविंग least number of hydrogen atom, okay. So you added here, so OH will goes here and here it become negative. This first become negative and second become positive, okay. तो ice जो है नेगेटिव का पार्ट में चला गया, दैट इज कार्बन नंबर 1, ओके। जो पॉजिटिव साइड है ना, पॉजिटिव साइड मीन कार्बन नंबर 2 है, तो उसमें OH आ गया, देन यू गेट वन ऑफ अल्कोहल, क्लियर। नाउ दिस इज फॉर अल्किन मीन्स दैट इथिन, ओके। अभी प्रोपिन में देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 इज देयर, प्रोपिन, ओके। प्रोप 1 इन है, तो वाटर मीन्स आइस एंड ओएस हो गया। तो अभी टूटा दो, एक में हाइड्रोजन 1 है, एक में हाइड्रोजन 2 है। तो अभी क्या बोला, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जो हाइड्रोजन कम है उसमें जाएगा बोला, तो योर प्रोडक्ट विल बी वन आओ CH3 COH, देन एक आइस जो है CH2 में चला जाएगा तो CH3 आ जाएगा, ओके। आपको क्या मिला, prop 2 all, okay, clear. So like this one you will get it, clear now. So this is what about the preparation of alcohol from alkene, okay. So your reaction mechanism is here, you can easily check it. This one will not go, this reaction mechanism. अभी देखो वाटर में से प्रोटोनेशन करने के लिए क्या हो गया, वाटर प्लस हाइड्रोजन आयंस, देन यू गेट हाइड्रोनियम आयन मिल गया, हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ ये टूट गया तो कार्बोकेटायन बना लिया, ओके। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है ये, तो फिर इधर से क्या आ गया, न्यूक्लियोफिलिक एटैक आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एटैक आके ये बना दिया, ओके। देन मतलब नेक्स्ट में क्या है, डीप्रोटोनाइजेशन किया तो आपका ये मिल गया, क्लियर। दिस इज व्हाट यू हैव सीन हियर। दिस इज नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओके। नेक्स्ट में बाय हाइड्रो, ओके, ऑक्सीडेशन। नाउ यू नीड टू डू ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग वन ऑफ बोरिन्स, डाइबोरेंस, ओके, ठीक है। नाउ अभी देखो डाइबोरेन जो है ये है, क्लियर, BH देन BH2 2 टाइम्स, ठीक है। ये डाइबोरेन जो है उसने क्या कर दिया, ये अल्किन को टूटा दिया, तो BH2 इधर से आएगा, तो BH2 एंड आइस हो गया ना, तो आइस को अभी यहाँ में चला गया, देन कार्बन नंबर 2 में आइस चला गया, देन कार्बन नंबर 1 में BH2 घुस गया, ओके। सो लाइक दिस वन यू विल गेट इट, समझ में ना। तो फिर यहाँ का जितना भी हाइड्रोजन है BH2 का, ओके, तो इसको 1 बाय 1 अल्काइल ग्रुप में रिप्लेस करते जाएगा। अल्काइल ग्रुप मीन्स आपका ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH जो है मोर एंड मोर लेने से इधर क्या आ गया, BH2 था, एक और डाल दिया तो 2 टाइम्स आ गया, ये लाइन को 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये एक और डाल दिया तो 2 टाइम्स आ गया, तो इधर के एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इसीलिए BH आ गया। एक और एक्सेस ले लिया तो क्या होगा, एक और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं कि नहीं, ये हाइड्रोजन एक बचा है ना, तो फिर उसको एक अल्काइल ग्रुप में चेंज करेगा ना, तो B ही बचेगा ना, तो ये अल्काइल ग्रुप कितना हो गया, 3 टाइम्स आ गया, ओके, क्लियर, लाइक दिस वन, ओके। देन आपका परोक्साइड यूज करो इधर में, ओके, H2O2 मीन्स परोक्साइड है, परोक्साइड से OH आएगा तो B को रिप्लेस करके अभी अल्कोहल बनाएगा, ओके। सो लाइक दिस वन बाय हाइड्रो मीन्स वाटर एडेड किया लास्ट में, इसलिए हाइड्रो बोल के आ गया, ओके। बोरिनेशन मीन्स ना डाइबोरेंस के साथ रिएक्शन करता है, उसको क्या बोलता है, बोरिनेशन,
ओके, सो हियर हाइड्रोबोरिनेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ओके, समझ में आ गया क्यों हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलता है, मतलब. ओके, हाइड्रो मीन्स वाटर से है, लास्ट स्टेप में वाटर डाल के अल्कोहल बनाया बोल के उसको हाइड्रो बोल के. ओके, किसका साथ रिएक्शन किया, स्टार्टिंग मटेरियल डाइबोरेन से. ओके, तो डाइबोरेन के साथ क्या काम किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन. क्लियर. सो दैट इज व्हाई वी कॉल एज ए हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. समझ में आ गया ना बे. सो लाइक दिस all these reactions you need to understand it. Okay, how will you convert, हम लोग ये पूछ सकते हैं, how will you convert propene to propanol. You can write the questions. How will you convert propene to propanol. Okay, आंसर में ये रिएक्शन नहीं लिखिएगा. ओके, so you can write this one as the answer. Next is from carbonyl compound. Okay, carbonyl compound means क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं. ओके, तो यू नीड टू अंडरगो रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन मीन्स रिडक्शन. ओके, सो व्हाट वी हैव हियर इज दैट फर्स्ट वन हम लोग क्या लिया, एल्डिहाइड ले लिया. ओके, तो हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ बनाओ पलाडियम. ओके, तो अभी एक हाइड्रोजन ऐड करेगा यहाँ में, तो दो हाइड्रोजन है कि नहीं, तो इधर में हाइड्रोजन ऐड कर लिया, तो RCH2OH आ गया, अल्कोहल मिल गया. क्लियर, समझ में रहे. सो लाइक दिस वन आपका ये कीटोन है. ठीक है, तो कीटोन में क्या है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो है. ठीक है, क्या नाम दिया, NaBH4 को हम लोग सोडियम बोरोन हाइड्राइड. इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोन हाइड्राइड टू गिव क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल. क्लियर. Okay, whereas the aldehyde group undergo reduction in presence of palladium to give primary alcohol. So you need to understand this one. Clear? कोई भी aldehyde लेगा तो क्या करेगा बोला, रिडक्शन करेगा, तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. ओके, अगर रिडक्शन हुआ किसको, सेकेंडरी अल्कोहल को, सॉरी कीटोन को, तो क्या मिलेगा बोला, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा. क्लियर. सो जनरली एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, व्हेयरएज कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन सब्जेक्टेड टू रिडक्शन. क्लियर. तो प्राइमरी अल्कोहल कब मिलेगा, एल्डिहाइड, देन सेकेंडरी अल्कोहल कब मिलेगा, आपका कीटोन को करने के समय में. ओके, again by reduction of carboxylic acid and ester, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को आप रिडक्शन करो बोला है. ओके, नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर. क्लियर. तो क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला. ओके, देन एस्टर ले लिया, RCOR-, दिस इज एस्टर. ओके, ठीक है, तो जब एस्टर लिया तो आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, देन क्या मिला, आपका 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल मिलेगा. ठीक है, दैट मीन्स एस्टर का ये टूट जाएगा, ये RCO था ना, तो RCO एक रहेगा, एक OR रहेगा. ठीक है, RCO से एक आइस डाल दो, ठीक है, तो RCH2OH मिल गया. फिर R-O जो है, इधर से आइस डाल दो, R-OH मिलेगा ना. क्लियर, समझ में ना. तो एस्टर होने से 2 टाइप का अल्कोहल मिलेगा. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो ओनली 1 टाइप्स ऑफ अल्कोहल मिलेगा. समझ में ना. दिस इज व्हाट वी हैव. सो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर्स विथ नो अल्कोहल इज कॉल्ड एज ए, क्या बोला, बोबाल ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं उसको. ओके,
समझ में ना, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर विथ अल्कोहल, ये नो जो है ये नहीं होना है, विथ अल्कोहल, समझ में ना। With alcohol. इसको क्या बोलता है बोला, बोलबर्ट ब्लैंक Bowal. ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं, ओके क्लियर। सो फॉर up to this only we'll discuss. So see here nicely with one now क्या बोलता है उसको, RMGX को क्या बोलता है, विथ ग्रिग्नास रिएजेंट, ग्रिग्नास रिएजेंट, ओके। तो अब ये हो गया ग्रिग्नास रिएजेंट। तो ग्रिग्नास रिएजेंट का जब रिएक्शन किया तो क्या होगा, ग्रिग्नास रिएजेंट मीन्स डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, ओके। RMGX, ठीक है। तो ये RMGX जो है किसका साथ, ये पॉजिटिव के साथ ये हो जाएगा। तो क्या मिल गया, OMGX मिल गया, ये पार्ट पॉजिटिव है, R जो है क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो R जो है इस तरफ में चला जाएगा, समझ में ना। क्यों, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कैरी करे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन बोला था ना। सो ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज घुस जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या है, MgX है। तो आपको क्या मिल गया, OMGX मिल गया, ओके। तो R जो है कार्बन में अटैच हो गया। तो उधर में पानी डाल दो, तो पानी डालने से क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लियर। सो द रिएक्शन प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल विथ मिथानॉल, मिथानॉल होने से प्राइमरी अल्कोहल होगा, एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ एल्डिहाइड। अगर ये जो है कीटोन लिया था ना इधर में C डबल बॉन्ड O बोल के, अगर C डबल बॉन्ड O के बदले आपको OH ले लिया तो क्या मिलेगा बोला, अभी मीन्स एल्डिहाइड ले लिया तो आपको सेकेंडरी मिलेगा बोल के बोला, ओके। एंड टर्शियरी अल्कोहल विथ कीटोन, ओके। समझ में ना, ये R हो गया तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, समझ में ना, पता चला ना। आपका प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड लेने से, अगर और टर्शियरी लिया तो कीटोन मिलेगा। हाँ स्पेसिफिक है, पता चलने के लिए, ओके। तो अभी किसका साथ, ग्रिग्नास रिएजेंट का साथ, ये पता चलना, ओके, ठीक है। मिथानॉल लेने से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, याद रहना, ओके। सेकेंडरी अल्कोहल जो है कब, एल्डिहाइड करने के समय में, एल्डिहाइड और ग्रिग्नास रिएजेंट के साथ ये करने के समय, टर्शियरी और जो है कीटोन होने के समय, ओके। तो अभी ये क्या है, ICOS मीन्स क्या है, मिथानॉल है ना, OH होने से AL डालो बोला था ना, ठीक है। मिथानॉल है, मिथानॉल विथ किसका साथ, RMGX का साथ रिएक्शन करा दिया, ओके। तो सेम बराबर ये O के साथ MgX आएगा बोला, C में क्या डालेगा बोला, R डालेगा बोला कि नहीं, तो ये मिल गया। सिर्फ पानी डाल दो तो फिर क्या क्या गया, RCH2O में H डालेगा, MgX OH जो है MgX के साथ हो जाएगा, इजीली लिख सकते हैं ना, वो ये दूसरा कुछ नहीं, ओके। तो अभी फिर ये हो गया मिथानॉल के समय में, ओके। मिथानॉल के समय में क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, मिथानॉल के समय में प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, समझ में ना। मिथानॉल लेने से प्राइमरी अल्कोहल। अभी देखो RCHOH, ये क्या है, R एक है, C है, H है, डबल बॉन्ड O है, ओके, ठीक है। तो अभी RMGX के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या मिल गया, सेकेंडरी मिल गया, समझ में ना, ठीक है। मिथानॉल छोड़ के दूसरा एल्डिहाइड ले लिया तो क्या मिला, सेकेंडरी मिल गया, समझ में ना। नाउ अभी क्या बोला, आप कीटोन लेने से टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा बोल के बोला था ना। ये देखो R यहां तक RC हो गया, OR तो 2 R है, एक C है कि नहीं। तो ये क्या है, टर्शियरी कैसा मिल गया, देखो RMGX का साथ ये रिएक्शन हो गया, सेम प्रोडक्ट आ गया, वाटर डाल दिया तो क्या मिला, 3 R मिल गया ना। तो इसका मतलब क्या है, टर्शियरी मिला है, समझ में आ गया ना अभी। दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर।
ठीक है. So hydrolysis of alkyl halide and this and that we'll discuss tomorrow. आज के लिए इतना.